So, hello Pritesh, hello Vaibhav, all three golden jacket in one frame. Hello How are you everyone. Hi feeling? everyone. क्या हाल चाल भाइयों सब मौज बढ़िया चल रही बढ़िया है? बढ़िया. It's an honor and pleasure to be here with you guys. वो तो है। Same here. Same. It's a pleasure to be here and to Yeah. share this platform with the iconic Golden Jacket achievers with Vaibhav Bhaiya and Ankit Bhaiya. So Pritesh, like I remember last year January only we connected on LinkedIn. So how was your journey? And Vaibhav, you can also share because golden jacket is Yes. something. Because what I have observed is there are n number of educators on YouTube or everything. I am Yeah. not sure like if anyone is having golden jacket or not. But since we all three like recent started our career in IT, so how was your experience and everything? Just Well, I don't have my golden jacket as of now, but in next आई video I'll आई make sure जाएगी to आई जाएगी आ डिलीव जाएगी. अगली वीडियो तक Soon आ you'll be able जाएगी. to get it. डिलीवरी तो होनी है. Uh, So let me introduce Vaibhav. He is one of my LinkedIn follower. Now we are like what I can say rather than a friend, we are bros. He is having yeah. his YouTube channel also, and he is sharing all contents. Recently, he has shared a video of developer associate, and his guidance is extremely helpful. Because of its guidance, I cleared few of my certifications. To be frank on this side, yeah, Vaibhav. Yeah. Sure. So yeah. Hi everyone. My name is Abhav Kaushik. Shall we start from the introduction and Yeah, then yeah, we yeah. can move forward? Whatever you feel. Sure. So, hi everyone. My name is Abhav Kaushik, and I'm also a golden jacket holder. I have all available AWS certification. Currently, I'm preparing for the 13th one, which is the Generative AI Professional certificate. And I have around 4.6 years of total experience in IT. And currently, I'm working in Wipro as a senior AWS cloud engineer. Pritish, over to you. Yeah, so okay, thank you for giving me this opportunity. So I'm Pritish Anand. I'm working as a cloud engineer with a Dubai-based company. So I'm working with AWS from past around 2.5 years to be precise. And yeah, so I've also cleared the AWS Golden Jacket. You can see wearing this shiny golden jacket. So Amazing. I got it recently in the AWS reInvent conference only. So I got it handed over to me there only. So by then only I'm just wearing it whenever there is any conference, any talk. So you can just see me in this shiny golden jacket every time. I observed like you are keeping this aside to your bed also while you are sleeping. उसके पास So, दो golden jacket है. yeah, he's having two golden jacket. That is strange. One color is quite faded and the other one is he's having right now. Yeah, actually, there is a very interesting thing. So this one भाई is एक I एक got. एक वैभव को दे दे यार. उसको अभी अभी एड्रेस भेजो आप अभी कुरियर कर देता हूँ मैं. हाँ. बेंगलोर आना तो दे देना. डन तो इंटरेस्टिंग स्टोरी एक तो रीइन्वेंट में मिल गई एंड एक माय प्रीवियस कंपनी हैज रेज फॉर मी सो दैट एडब्ल्यूएस पार्टनर कंपनी विल गोइंग टू रेज फॉर यू एंड विल गोइंग टू गेट इट डिलीवर्ड. अगर मैं रीइन्वेंट में सो जाऊंगा दिस इज मुझे द एक और स्टोरी. मिल जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. ट्राई जरूर करना. But you have to fill in the form in the starting. I believe there is a form that will going to out before the 1 month of the event, so that we have to fill. And Yeah. Let's see. on the first day, पहले दिन हमें event में there is a uh, like place a Venetian Ballroom J certification lounge वहाँ पे हमें मिलता है. So every Yeah, time the yeah. venue will be same, so there we can get it. Cool, Yeah. cool, cool. So for the context, I work in Wipro from Bangalore location. Ankit works in JPMC from Hyderabad location. And Pritish, you work And from? I am working from currently from my hometown Lucknow only, so as a cloud engineer, and That's so great. I work for a Remote Dubai-based job. company. So yeah, so currently as a remote job, it is going. बढ़िया है भाई मौज Sure. ही है. रिमोट वालों के असली मजे हैं भाई भाई कुछ भी रिमोट वाले के मजे हैं भाई, घर पे घर में बैठे बैठो बैठे. काम करो. ना ऑफिस जाना ना कुछ. तो Yeah. लाइक मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को तो सबसे ज्यादा टफ सॉल्यूशन आ गया प्रोफेशनल लगा. और लिटरली मुझे याद है Same, मैंने same. 13 नहीं, फरवरी. टफ से पहले ये शुरू करते हैं कि तुमने AWS की जर्नी क्यों शुरू करी. भाई टू बी फ्रैंक आई वाज फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड एंड Okay. I prepared for GATE two times. Third final year, Same. and when I joined TCS, I gave GATE from two branches, which were EC and EI, electronic Okay. instrumentation. Hmm. But what I can say, like something is defined in my destiny, and I cleared the GATE, but that not too with good marks. In final year, I was not able to clear the GATE also, though I prepared for almost 3 years, second, third, and final year. So might be something might be else sitting in my destiny. So in when I joined TCS in 2021, I gave gate paper in 2022 February. It happens in February, and I just cleared. So there was no point.
at that time. So that after that, I joined Amazon in June. I got the offer. September, I joined, and in Amazon, what we were having, it was compulsory for us to clear the associate exam. Okay. At that time, clearing associate, that too for a EC guy, was a nightmare. Mm. I still remember I gave the test series of Stephen Merrick and I literally scored 2 out of 100. And that too Okay. were two cleared because of I one thing I know Cost Explorer, one thing I know AWS budget. We all have faced that यार, उसमें कोई वो नहीं है, But मैंने भी बहुत टेस्ट हाँ. केस फेल करे अरे हैं। भाई Hmm. फिर I remember one thing he was having a question of car race dashboard of F1 race. From that I learned kinesis service, how real stream data happens and everything. Right. It is there, still the question is there. But I gave associate exam and I cleared. So I just took like what I was having a consistency and what I can say hunger. I usually purchase. I made a group of 3 friends. I purchased some Udemy courses whenever they were cheap, 399. So I purchased Hmm. developer course and I thought like, every course is same videos. Stephen, what he does is if he's teaching Hmm. of AWS Yeah, EC2, he will put the same video there also. yeah, Same yeah. video, right? So I thought if Right. he is playing smartly, let's play as smartly. So I scheduled the developer and cleared. And after that, sysops and everything, and then go on line by line. So I cleared 5 certification. After that, I took a rest because I was learning EKS at that point of time. So after I Mm. thought like let's get the golden jacket because one of my senior was having that and he was very popular on LinkedIn on that time. So that And motivated he's me. an ex-AWS. Huh. So that Yeah. motivated me. So I struggled very hard, late night study and everything. And literally, I still remember the night of 13th February when I gave Solution Architect Professional. I just passed with 1 mark 751. It was a nightmare exam भाई. जो उसमें क्वेश्चंस थे धुएं निकाले थे उसमें लिटरली इतने टफ मेरे क्वेश्चन. लिए नेटवर्किंग प्रोफेशनल सबसे वो टफ था, वो एक बार तो फेल भी करा था। वो तो भला हो स्टीव नेटवर्किंग प्रोफेशनल भाई. दिवाली वाले दिन लास्ट ईयर हम्म। सुबह 5:30 बजे दिया था मैंने. डेयरिंग चैलेंज लिया था मैंने लाइफ ऐसी. वो दिवाली जिंदगी में याद रखनी थी ना. फेल हो तो ठीक है, पास हो गए तो भी. वो अब रहेगी जिंदगी भर। याद है उस समय हम याद है लिंक्डइन पे हम वी वर कनेक्टेड दैट टाइम हाँ. व्हेन यू क्लियर द तो एएनएस. वो तो भला हो स्टीफन मैरिक को उसने एक बार बता रखी थी. पीआईई मतलब मैकी, लेटेंसी मतलब क्लाउड फ्रंट, सर्वरलेस मतलब लैम्डा, सर्वरलेस मतलब फारगेट और रेस्ट एपीआई मतलब लैम्डा. वो जो मैंने दिमाग लगाया वो एपीआई प्रोफेशनल गेटवे। में बच बस गया मैं बस. बस. हाँ. तो प्रीति, तुम्हारी आप क्या स्टोरी थी? हाँ. सो मेरी स्टोरी थोड़ी सी बहुत अलग थी. अंकित भैया की तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. यू क्लियर द गेट एंड मैं तो कभी गेट सोच ही नहीं सकता. इतना सारा करिकुलम पढ़ना पड़ता है. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर सेमेस्टर में मैं फेल होते होते बचा हूँ उसमें. सो भाई मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट था. देखा है मैंने. सो तभी मैंने कहा फुली इंस्पायरिंग जर्नी है. सीओए में तो मैं इट इज क्लास ऑन में नेक्स्ट लेवल है। मेरे बैच में मेरी डी आई थी. सब मुझे विटामिन डी मिल गई, आपको विटामिन डी मिल गई, ऐसे चिढ़ाते थे. सो मूविंग फॉरवर्ड जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी, सो आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न. तो अब कुछ प्लान नहीं था क्लाउड में आने का. क्लाउड में मैं सबसे बोलता हूँ एक्सीडेंटली आई एम जस्ट इनटू द क्लाउड. सो मेरा फुल टाइम वहाँ नहीं हुआ. So due to the headcount criteria feast, so we were given 2 months of buffer जिसमें we were extending our internships. So then ये था कि अगर हमें कुछ internal roles मिल जाएंगे we'll going to continue, but else अगर नहीं मिला तो we'll going to out from the Thales. So Thales was my first company. So then हम unfortunately कोई role नहीं मिला, we were out of Thales. So एक उसके बाद मैं तैयारी शुरू करने लगा. I cleared some कुछ एग्जाम्स होते हैं प्लेसमेंट्स के लिए. सो ई लिटमस करके होता है. देन विच आई हैव क्लियर्ड विद 99.8 99.9. 99.8. I have 99.7% I भाई think. वो So भी I have cleared. एक भी कॉल नहीं आई मुझे उसके बाद उस कंपनी से. सेम. सो मैं मुझे अभी भी याद है 6 अक्टूबर को मैं इंटर्नशिप से हटा था तो मैंने 10 दिन लगाए. एंड 16 अक्टूबर को मैंने 99.7 से निकाला. टीसीएस एनक्यूटी का पेपर निकाला. उधर से भी कोई कॉल नहीं आ रहा. और दोनों के बाद नहीं आया तो देन लक था. कुछ किस्मत थी कि 10 दिन में थैलेस का फिर कॉल आया कि वी आर हैविंग अ पोजीशन ऑफ क्लाउड ऑपरेशंस इंजीनियर. सो जहाँ पे आप प्राइवेट क्लाउड इंजीनियर ऐसा काम करोगे. सो इट इज 24/7. सो इट डिमांड सम challenges from your side. So I was like कि चलो कुछ नहीं है तो एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं. सिटिंग जस्ट आइडल आपके पास एटलीस्ट एंगेजमेंट हो. सो देन आई स्टार्टेड. सो देन आई वाज वर्किंग एज अ प्राइवेट क्लाउड इंजीनियर. हमारा खुद का डेटा सेंटर था इन टूर्स, डैलस एंड एटलांटा. सो वी वर वर्किंग अ मेजर वर्कलोड ऑफ बैंकिंग कार्ड पेमेंट सिस्टम. सो जिसमें हम L0 इंजीनियर का काम कर रहे थे टू बी प्रिसाइज. सो काम हमारा जस्ट था कि नॉर्मल टिकट्स बनाना एंड जस्ट रेज इट टू द हाई लेवल प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टीम. So we were doing nothing, so to be honest. So just simple troubleshooting and all. So then there was a team, public cloud team, who is
वर्किंग विद AWS, वो मेरे बगल में बैठती थी. सो देन मुझे पहली बार AWS क्लाउड के बारे में अंदाजा लगा कि AWS क्लाउड भी कुछ एग्जिस्ट करती है दुनिया में, एंड दे आर सॉल्विंग मैसिव प्रॉब्लम्स. सो देयर वाज माय फ्रेंड देयर. सो उससे मैंने पूछा क्या है ये क्लाउड, कैसे पढ़ सकते हैं. सो ही गाइडेड मी कि भाई आप इसको अगर पढ़ना है तो इसमें कुछ सर्टिफिकेशंस होती है, आप पढ़ लो उसको. सो आई वाज लाइक चलो कहाँ से शुरू करें सर्टिफिकेशन. तो उनके अंदर एक ये था कि उसमें जो इंटर्न्स आते थे उनको सोल्यूशंस आर्किटेक्ट निकालना होता था फुल टाइम के लिए, तभी उनका फुल टाइम होगा. सो आई वाज लाइक, उन्होंने कहा कि हम भी यही करते हैं, तुम भी यही कर लो. मैंने कहा कहाँ से पढ़ना है. तो जैसे स्टीफन मारिक का आपने नाम लिया, तो स्टीफन मारिक बड़ा फेमस है. सो सबके सब स्टीफन मारिक सजेस्ट करते हैं. सो हमारे पास यूडेमी का सब्सक्रिप्शन था, आई स्टार्टेड स्टीफन मारिक. तो स्टीफन मारिक मैंने शुरू किया, एंड सो मेरा प्लान था कि आई वांट टू जस्ट अपस्किल इनटू AWS क्लाउड, एंड मुझे अपस्किल करना है AWS क्लाउड में, जॉब चेंज करनी है टू बी वर्किंग एज AWS क्लाउड इंजीनियर और सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट समथिंग. सो फॉर दैट पर्पस मैंने एक रोड मैप बनाया कि आई विल डू सम एक सर्टिफिकेशन या 2 सर्टिफिकेशन, देन आई विल मेक प्रोजेक्ट्स, एंड मैं जॉब स्विच करने के लिए अप्लाई करूंगा टू रिक्रूटर्स. सो ये मेरा प्लान था. सो प्लान में ये ट्विस्ट कब आ गया या जो भी है किस्मत की बात है, कहाँ से कहाँ आ गए. सो प्लान ऐसा था कि एक सर्टिफिकेट करेंगे. सो देयर वाज अ टीम जो हमें कूपन अरेंज करके देती थी कि आपको अगर कोई एग्जाम देना है, विल गोइंग टू दैट टीम विल गोइंग टू स्पॉन्सर अस विद इन थैलेस ओनली. सो व्हाट हैपेंड कि आई वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट. मैंने 2 3 4 महीने लगा दिए थे, एंड आई वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड. एग्जाम्स में कॉन्स्टेंटली मेरे 900 तक मार्क्स आ गए थे कई कई में. तो बहुत ही रेडी था मैं अपनी तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कूपन नहीं मिल पा रहा था. And this is a huge amount that will going to be needed to clear the examination, $150 or something. So $50 so they told me कि अभी they told me कि अभी हमारे पास एसोसिएट का कूपन नहीं है, हमारे पास फाउंडेशंस के कूपन भरे पड़े हैं, तो आपको अगर वो चाहिए तो we'll going to provide you. So I was like कि चलो अभी फाउंडेशंस प्रैक्टिशनर जब एसोसिएट कर लिया है तो प्रैक्टिशनर पढ़ लेते हैं और 10 दिन में निकाल देंगे. सो मैंने तब प्रैक्टिशनर पढ़ लिया क्योंकि प्रैक्टिशनर के कूपन अवेलेबल थे. सो मैंने दोनों पढ़ लिया, AI प्रैक्टिशनर एंड फाउंडेशंस. देन मेरी सर्टिफिकेशन जर्नी शुरू हुई, तो मैंने ये 2 कर लिए. सो 2 करने के बाद देवर लाइक कि अब हमारे पास कूपन्स आ गए हैं एसोसिएट के. तो वो डेस्टिनी में लिखा था 1 की जगह 3 करने थे. सो जब मैंने 3 कर लिए, तो जैसे अंकित भैया ने कहा कि जब 3 कर लिए तो उसके बाद पता चला कि डेवलपर एसोसिएट करके सर्टिफिकेट होता है, और देखा मैंने कि 70% ओवरलैपिंग है. बस हमें लैम्डा API गेटवे डायनेमोडीबी इन सबको डेप्थ में डेवलपर में पढ़ना है. तो लैम्डा और क्लाउड फॉर्मेशन के अलावा कोड कमिट, कोड बिल्ड, और कोड बेटर. डिप्लॉय, ये सब पढ़ लो थोड़े बहुत तो हो जाता है. मतलब सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट में अगर मोस्ट इजीएस्ट सर्टिफिकेट. राइट, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट में 30 सेक्शंस है, डेवलपर में 30 सेक्शंस है. तो शुरू की 20 दोनों में सिमिलर है. तो एकदम डिट्टो स्टीफन ने सेम ही वीडियो डाल रखी है. वो कई बार वीडियो में शुरू में बोलता है कि अगर आपको मेरे मुंह से गलत सर्टिफिकेट आ जाए. प्रोफेशनल में तो सीधा सीधा बोला है कि भाई पहले पढ़ के आओ सारे, फिर आना इस वीडियो में. हाँ, वो सीधा सीधा राइट उसने बोला है कि पहले वीडियोस करके आओ. और कई बार तो ये स्टार्टिंग में स्टीफन विल गोइंग टू से कि अगर आप मेरे मुंह से कोई गलत सर्टिफिकेट का नाम ले लो, सुन लो, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, आप सही कोर्स पे हो. वो याद है लास्ट में याद है, आई होप यू लाइक इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. या गया था मेरे को भाई, मेरे सपनों में स्टीफन मैरिक ही आता था. अरे एक बार स्टीफन मैरिक से जरूर मिलना है. अबे स्टीफन मैरिक को गोल्डन जैकेट ही नहीं है. स्टीफन मारिक पे नहीं है. ही इज 11 या उसने चाहे 9-10 के बाद छोड़ दिया गया. 9-10 है उसके पास. 9 या 10 करके छोड़ भाई दिया. भाई उसकी वजह से हमारे पास है आज. डेफिनेटली. गॉड है भाई AWS का. सिंपल, बस वही एक छोटी सी था कि क्लियर किया डेवलपर एसोसिएट, देन सिसऑप्स देखा, वो तो 90% ओवरलैपिंग है. बस कुछ चीजें और करनी है, इलास्टिक कैशे, memcached थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना है. तुमने तो मॉनिटरिंग, तुमने तो सिसऑप्स थ्योरेटिकल दिया, हमने तो लैब वाला भी दिया है. हमारे टाइम पे लैब हट गई थी जब तुमने मैंने लैब वाला दिया है. मैंने लैब वाला दिया था. अरे भाई जब मैंने दिया मेरे था टाइम पे उसमें MS के क्लस्टर बनाने का एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है. और भाई उस समय VM इतने स्लो चल रहे थे, बट तब भी हो गया. तो कैसे क्या ही बोलूं. भाई आप बताओ थोड़ा बहुत. आप तो आप बताइए. वैसे आप मेरी इंस्पिरेशन हो यार सुनने में. आपकी वीडियो देख देख के मैं थोड़ा बहुत मुझे अभी भी याद है वैभव, वैसे मैं कनेक्ट हुआ था, इफ यू रिमेम्बर कि वी वर कनेक्टेड, लाइक जब मैंने सर्टिफिकेशंस निकाले तो ही वाज आस्किंग क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो एंड क्या क्या रोड मैप है. सो ही वाज वेरी लाइक एक्टिव एंड बहुत गाइडेंस दी है मुझे कि कैसे कैसे सर्टिफिकेट किया. एएनएस के समय पे तो बहुत गाइडेंस ली. मैं प्रीतिश को देखता था, मैंने जब 3-4 सर्टिफिकेशन रेगुलर निकाले लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर, ये हर पोस्ट पे कमेंट कर रहा है कौन है भाई. फिर हमारी बात हुई, फिर उसने कहा भैया व्हाट्सएप नंबर दे दो. ठीक है भाई ले ले, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. बट भाई मुझे आज भी याद है जब आपने गूगल वाला निकाला था, आपने कहा था क्या करोगे तो सर्टिफिकेशन निकाल. अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा. जब मैंने सर्टिफिकेट स्टार्ट किया था ना, सर्टिफिकेट स्टार्ट किया था तो मैं जब आप वो है ना कि आप कभी कभार देखे होगे, आप जो सोचते हो आपके फोन पे आ जाता है. आपने कुछ खाने का सोचा, वही आपको रेसिपी आ जाएगी. मैं
मैंने एक शॉर्ट देख रहा था, अचानक से वैभव भाई की एक रील आ गई मेरे पास। एक अरे शॉर्ट बनाया था इन्होंने सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की, जो इन्होंने क्लियर किया था। और वो बस सर्टिफिकेट पेज का इन्होंने वो एक फोटो ऐसे वीडियो एक छोटी सी बनाई की तुम डाली लोग थी। पेपर देने से मुझे पहले फिर तुम लोग पेपर देने से पहले कुछ खा के जाते थे? नहीं भाई नहीं। भाई मैं मैं भी पिज्जा नहीं। पिज्जा मोमोज स्मोकी ग्रिल्ड। भाई नींद आती दिमाग है। मेरा दिमाग उसके बिना नहीं चलता था पेपर में। मैं 2 से 5 का स्लॉट रखता था और 12 बजे तक मेरा सोता भी। था। मैं मेरा ये रखता था 3 से रहता था। मैं दिन में कभी भी रख लेता था, मुझे बस 2 घंटे पहले हाँ। स्मोकी ग्रिल मिल जाए, मेरा दिमाग एक्टिव हो जाता था। भाई अच्छा, एक मैं बार पेपर के बाद अपने आप प्रोफेशनल को ट्रीट देता था। नहीं भाई, वो तो मैं तब देता था रिजल्ट आए। एक बार प्रोफेशनल में क्या हुआ, मैंने करे पिज्जा और मोमोज ऑर्डर, क्योंकि वो बहुत टफ था। उसे दबेरा, आधे घंटे बाद पेपर दिया तमीज से। भाई जो दिमाग में कंसर्ट, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है, आपको जो सही लगे बात। या दैट इज ट्रू। लोग या कहते हैं कॉफी पी के जाओ, भाई मुझे कॉफी पी के नींद आती थी, मेरे बस की नहीं थी। जो जिस चीज से मुझे डोपामाइन रिलीज होता था मैं तो वही करता। मैं बोर्ड्स के एग्जाम में ये करके गया था। तो यार मेरी स्टोरी है वो तुम दोनों के कॉम्बिनेशन की है। मैंने भी गेट दिया था 2 बार, दोनों बार फेल हुआ। भाई तीसरी भाई बार तो मैंने सोचा ठीक है यार। फिर कॉलेज अच्छा था, मेरा प्लेसमेंट मिल गई थी कॉलेज से। पहले मैंने कैपजेमिनी में काम करा एज अ C++ डेवलपर। अराउंड 8 मंथ्स आई वर्क देयर। उसके बाद आई जॉइंड विप्रो बिकॉज विप्रो इज गिविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी देन कैपजेमिनी। पार्टी। तो यहाँ तो यहाँ पे आके जैसे तूने बताया, हमारी कंपनी अभी एक एआई एकेडमी है दैट हैंडल्स ऑल द सर्टिफिकेशंस एंड ऑल। और वो तो तुम्हें पे करती है, तुम जितने ज्यादा सर्टिफिकेट करोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो मैंने अब तक ओ। 8-10 हज़ार विप्रो से ले रखे हैं। उसका मैंने प्रोटीन वगैरह खरीद लिया था। यार हमें नहीं तो मिला यार ये सब, हमें नहीं मिला यार ये सब, तो गलत जो बात है। मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था दैट वाज आई वाज हायर्ड एज अ जावा डेवलपर। एंड जावा में मेरी बैक आई थी कॉलेज में। आई हेट जावा। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उस टाइम हमारी ट्रेनिंग हुई थी क्लाउड एंड डेवऑप्स की। उसमें मैंडेटरी था एक सर्टिफिकेट करना। तो हम्म। उसकी ट्रेनिंग करी थी। फिर मैंने क्लाउड प्रैक्टिशनर करा था। तो मुझे लगा यार ये चीज़ तो बढ़िया है, एटलीस्ट जावा से तो अच्छी है। मुझे सिर्फ जावा से छुटकारा पाना था, मुझे ऐसा नहीं था कि क्लाउड एंड डेवऑप्स में जाना है। हम्म। तो वहां से फिर मैंने एक सर्टिफिकेट करा, फिर दूसरा करा, फिर तीसरा करा, फिर चौथा करा। फिर मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट में आया। फिर वहां पे मैंने 2-3 और करे, प्रोफेशनल लेवल करा, फिर वो प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया। फिर मैंने तीसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन करा विप्रो में। तीसरे प्रोजेक्ट में जाके दैट इज बेस्ड ऑन एंटायरली ऑन AWS, दैट इज हम्म। हेविली ऑन AWS। तो वहां पे फिर मैंने जाके 7th करा, 8th 9th 10th 11th। अभी मैंने पिछले साल ही 12 के 12 AWS सर्टिफिकेशन अचीव करे हैं और अभी 13th वाला कर ही रहा हूँ। सो दैट मैं इज माई मैं जर्नी। तो सोच रहा हूँ 13 वाला तीनों साथ में लेते हैं जिस दिन पे प्यार हो। एक ही दिन मैं दे रेडी हूँ, सकते हैं। मैं रेडी हूँ देने के चलो। लिए जब कहो। मैं भी रेडी 13 दे हूँ। कौन सा रहे हो, क्लाउड ऑप्स दे रहे हो या जेने क्लाउड दे ऑफ रहे तो हो? हो गया नहीं भाई, नहीं, जेने क्लाउड ऑफ आई। तो हो अच्छा, गया। क्लाउड ऑप्स कर लियो आप तो, 13 तो अरे आपका डन है। नहीं 14 देंगे फिर तो, जेने ही डन। 14। अभी भाई अभी आपका मेरा क्लाउड 13 ऑफ हो बच रहा गया, है। आपका क्लाउड ऑफ हो गया। नहीं, सिसॉप्स था मेरे पास, क्लाउड ऑफ देने की क्या अरे जरूरत दे है। दो यार, सिसोस वाले बुरा वो मान जाएंगे। देना है, देना है। भाई उसका अलग, अगर अलग बैच मिले तो मैं दूं। बैच मिल रहा है, मुझे मिला है। मिल रहा है, अलग बैच बैच सिसॉप अलग मिल रहा सिसॉप्स है। के अलावा। हाँ अबे दो हाँ, 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 लेंडर पोस्ट, मतलब पोस्ट डालने के लिए भी बैच मिल रहा है, रेडी पे आ रहा है। हाँ। चलो ठीक है यार, तुम कह रहे एक एक सर्टिफिकेट तुम्हारे नाम का। अरे भाई लिख देना। नहीं नहीं, डन है। मेरे इसी मंथ की चेकलिस्ट में है क्लाउड ऑप्स। यार जेन आई थोड़ा सा सिलेबस बहुत है, उसका टाइम लगेगा पढ़ने हाँ में। बहुत सिलेबस है मेरा अभी भी। सिलेबस है। प्लस उसमें और क्या दिक्कत है, उसमें 40% ही हुआ है। 85 क्वेश्चन है, मैंने सुना 75 के राइट, लिए। राइट, राइट, बीटा में 85 क्वेश्चंस है। है वो 3 घंटे 25 मिनट। हाँ तो दो बार राइट। स्मोकी गिल खाना पड़ेगा यार। तो मैं तो सो आप एक्सीडेंटल क्लाउड इंजीनियर हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं, वरना मैं खराब जावा डेवलपर होता। एटलीस्ट आई एम अ गुड AWS इंजीनियर नाउ। गुड नहीं, वी कैन से बेस्ट। बेस्ट बेस्ट अमंग अस। अरे नहीं नहीं, बेस्ट तो आप हो अंकित सर, अरे आप नहीं भाई, कॉलेज टॉपर हो और ये सब। सब तो बस चलता रहता है भाई। अभी तो अपने उन्होंने अपनी ब्लू जैकेट की जर्नी नहीं बताई है। भाई अभी क्यूब एस्ट्रोनॉट की जैकेट लेनी है, 4 सर्टिफिकेट अरे हुआ है। हाँ यार, क्यूब नोट की मुझे भी लेनी है, कितने रह गोल्डन गए आपके, कितने क्यूब। रह गए? वो मैंने शुरू नहीं करे अभी अभी मैंने क्यूबरनेट्स का, भी शुरू क्यूबरनेट्स का एक भी नहीं करा? किया। कुबरनेटिस का एक भी नहीं मेरा करा। साल मेरा सीकेएस रह गया बस। इनका एक रह रहा है बस, ओह, स्पेशलिटी। अरे देखो भाई, अभी ये गोल्डन भगवान क्यूस्नॉट की तरफ भी बढ़ भगवान रहे हैं। बैठे हैं, भगवान बैठे हमारे नहीं बीच। नहीं भाई, इतने बड़े शब्द मत को। भाई गोल्डन क्यूब तो एस्ट्रोनॉट तो मैंने बहुत लोगों को देखा है लिखने में, भाई इतनी मेरे बस की नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। गोल्डन क्यूस्नॉट में बट एक मुझे अबे उसमें ड्रॉबैक ये लगता है कि इस्टीओ उसमें वगैरह ये सबके कर, सारे, इस्टीओ वगैरह सब करने, अब इतना तो हाँ इस्तियो और पता नहीं क्या क्या है उसमें। आई बिलीव इस्तियो 15 पब्लिक है। सर्टिफिकेशन है टोटल। 15 सर्टिफिकेशन हमें करने हैं। मेरे एज्योर के सारे हो गए हैं, मेरे एडब्ल्यूएस के हो गए हैं, क्यूबरनेट्स के हो यार गए हैं। एजोर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अब मेरा नेक्स्ट गोल फुल्ली GCP सर्टिफाइड का है, तो अच्छा इस साल जीसीपी को जैकेट देता है? नहीं जैकेट नहीं देता। नहीं। भाई प्रीतेश भाई बात करो यार, तुम्हारी तो बहुत जान पहचान है, मैं सुना था।
तुम एक पोस्ट पहले डाल दोगे। स्वैग देता था, अब शायद स्वैग देना भी बंद कर दिया। अच्छा। अब नहीं स्वैग, हाँ अब स्वैग भी बंद कर दिया नहीं इन्होंने, पहले प्रीतिश, आर्केड गेम्स वगैरह होते थे। प्रीतिश अगर लिंक्डइन पे कुछ डाल दे तो भाई वो अलग ही इफेक्ट होता है उसका। भाई प्रीतिश तो अलग है, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर है लिंक्डइन प्रीतिश भाई, वो अपना। लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर है वो तो पक्का। अभी मैं मिलने वाला था इससे लखनऊ में, बट फिर वो मेरी ट्रेन जल्दी आ गई और मिल नहीं मिलते पाया। हैं, बैंगलोर आ जाना मिलेंगे। कभी भी यार, बैंगलोर में बैंगलोर। आऊंगा तो जल्दी। सी तो इस वीडियो का पर्पस ये था, हमें अपना इंट्रोडक्शन देना था, हमारी जर्नी क्या थी क्लाउड गोल्डन जैकेट की, हमने क्यों करा, राइट। इस राइट। सीरीज में हम अभी काफी वीडियोस डालेंगे स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन, या फिर हाउ टू गेट अ जॉब इन क्लाउड इंडस्ट्री, हाउ टू स्टडी क्लाउड एंड डेवऑप्स, हाउ टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, राइट। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट वीडियो लाइक एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद यू कैन एनीवन कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन लाइक what kind of videos you want us to deliver, and we'll do that. So Yes. Ankit and Pritish, any closing comments? My closing comment would be like you might have all seen the essays and every LLD, HLD lectures on YouTube or any of Yeah, the learning platforms. Just yeah, have a check on our cloud lectures also, because this will be something which might be helpful, which might, I'm not say might, which will be helpful to you. Because here three, what I can say, like we have given the exams, we know how patterns comes, what are the question asks, how to keep your mind attentive at that point of time. So just feel free to comment. As Weber mentioned, you can reach out to all three of us. We yeah, have our dedicated Insta page also. We will be sharing the link over that. Obviously on YouTube it will be uploaded. You can comment on this, and LinkedIn you yeah. can obviously reach out. So that will be my closing comment. Yeah. Sure. Pritish, Great, go ahead. great. So from my side, since I have been interacting with many students, many young professionals, they are like how to start this journey. So I must say that since we have discussed, like what we have discussed, that in the coming when you start from the level one and from the practitioner, you're going to find the next level of certifications to be overlapping with the previous ones. So that is the benefit. So I must say that if you are targeting the final boss, that is the 12 certification. So you can what you can just rely on, you can just rely on the momentum. Do not break the momentum, make it Correct. last from the step 1 to the step 12, and you can easily get it clear within just a fraction of like 1 or 2 years maybe. That's enough to clear all the 12 certification. So it is not something that is very tough. It's just a matter of consistency and discipline. You're going to crack it. So before closing, I just want to ask a simple question जो मेरे दिमाग में था, मुझे पूछना था. So ये मैं अभी आपको बताऊंगा 2 मिनट में कि मेरा क्या स्पेशल आंसर है. आपसे पूछना है, आप लोगों ने पहली बार गोल्डन जैकेट टर्म कब सुना था? जस्ट 1-2 मिनट में अगर आप बता सके मैं पहली तो बार मैं तो कि अमेजन एम्प्लॉय था, मैं तो देखते रहता था। मेरे यहाँ बात अच्छा होती रहती थी उसकी। मैं तो रोज का ही बात मैंने था। शायद लिंक्डइन पे देखा था कि यार ऐसा भी कुछ होता था। मैंने शायद एक या दो ही सर्टिफिकेट करे थे, तो 12 तक राइट तो सोचा भी नहीं था किसी ने कि 12 मैं भी करूंगा। एक बात और तो किसी कहूंगा, ने डाला था। आप सबने थ्री इडियट्स देखी होगी, ठीक है। या बिल्कुल। उसमें जब रेंचो वायरस से बोल, वो सॉरी, फुंगसुक वांगडू आमिर जब वायरस से बोलता वैसे है। हम लोग भी 3 ही हैं कॉल में, अंकित भैया। हाँ नहीं, अरे वो मतलब वो था वो जब बोलता है कि ग्रेडिंग सिस्टम आप चेंज करो, अगर आपकी हाँ ग्रेड आ रही है थोड़ी आप उसको टीवी पे दिखाओगे कि ये फेल हुआ। या वो बात मुझे हाँ हिट राइट। तब करी। मैंने सोचा कि अगर मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ कि मैं सीधे टेस्ट सीरीज शुरू हम्म, करता हूँ, मैं फेल होऊंगा तो रिजल्ट तो मेरे मेरे कंप्यूटर के बीच में, ये थोड़ी लिंक्डइन पे या कहीं से वायरल हो रहा है। तो मैं उसी को इम्प्रूव करता रहा, ताकि लोग कहते हैं कि मतलब आई गेट प्लेंटी ऑफ लिंक्डइन डीएम्स, हाउ यू मैनेज टाइम एंड या एवरीथिंग। सेम। Why, if you focus on test studies, you will sort the topics what you are missing. Suppose I am weak in EKS. I am हम्म, not able to do containers question, but I am able to do VPC and EC2. Na? Why will I watch the हम्म, videos of it? I know हम्म, I since I know what AWS console is, what subnet is, where they lie. Why should I watch video rather than I should concentrate that time into some other thing in which I am weak? That is my या philosophy. राइट राइट। बाय सॉल्विंग द प्रैक्टिस टेस्ट हमें अपना वीक पॉइंट पता चल जाता है कि करेक्ट। कहाँ पे हमें फोकस प्लस करना है, कहाँ नहीं जो करना है। उसके डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, इवन इफ यू हैव डन राइट, एक बार उससे पढ़ लो हम्म, कि मेरा और इसका पढ़ लो। थिंकिंग प्रोसेस सेम है नहीं है। हाँ राइट राइट। क्या पता हमने गलत अप्रोच सोच के उस सॉल्यूशंस पे रीच किया है, राइट। करेक्ट। सो देन विल गेट द क्लैरिटी। करेक्ट। राइट। या परफेक्ट। सो हाँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने जैसे बताया कि आपको सिंस यू आर अमेजोन एम्प्लॉय, एक्स अमेजोन एम्प्लॉय टू बी प्रिसाइज, सो आपके पास पता था कि गोल्डन जैकेट क्या है। सो आपका कैसा था वैभव भाई, आपने कब पहली बार सुना था व्हाट इज गोल्डन जैकेट, या टर्म मैंने आपको पहले? LinkedIn पे देखा था यार, तब मैंने एक या दो सर्टिफिकेट करे थे सिर्फ। तो अभी पहले भी कहा मैंने कि 12 तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी करूंगा। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया सी चीज है कुछ। और फिर पता लगा कि 12 करने पड़ेंगे। उस टाइम मैंने सोचा था यार 12 कौन ही करता होगा, ये मैंने भी ये पागल सोचा होंगे। था 12 कौन ही राइट। करेगा यार इतने फिर सारे। अच्छा। मुझे पता लगा हम ही वो पागल है। अच्छा, मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये जानने की कि गोल्डन जैकेट क्या होता है। तो जब मैंने 3 एसोसिएट कर लिए थे 25 दिसंबर 2000
2024 को मैंने डेवलपर किया। तो 5 दिन का ब्रेक लिया न्यू ईयर का, देन 4 दिन के अंदर मैंने सिसॉप्स निकाल दिया 5 जनवरी 2025। और 3 दिन बाद मैंने 8 जनवरी 2025 को लिंक्डइन पोस्ट किया। सो जब मैंने पोस्ट किया, आई स्टिल रिमेंबर कि वो पोस्ट एकदम वायरल हो गया, और 297 लाइक्स अभी भी उस पे हैं। उस समय भी उतने ही आ गए थे, तो अब उस पे बड़े नहीं, उतने ही हैं। सो उस पे देयर वाज अ पर्सन जिन्होंने कमेंट किया था, हिज नेम वाज रवि नंद्रू, एंड ही इज वर्किंग एज अ वेरी सीनियर ईडब्ल्यूएस इंजीनियर। सो उन्होंने कमेंट किया, और उनकी डीपी पे उन्होंने कुछ तो गोल्डन कलर का कुछ तो पहना हुआ। सो मुझे लगा कोई जैकेट उनकी होगी, या कुछ उन्होंने खरीदा होगा पर्सनलाइज कुछ। सो मैंने उनकी प्रोफाइल पे क्लिक किया, एंड ऑन हिज प्रोफाइल देयर वाज रिटन एडब्ल्यूएस गोल्डन जैकेट अचीवर। सो पहली बार मुझे वो टर्म वहां पता चला। आई गूगल्ड, आई लिंक्डइन पे मैंने और सर्च किया, तो बहुत सारे और लोग मिले गोल्डन कलर का ये जैकेट पहने हुए। देन उसके मुझे बाद पता चला। देखा, हर जगह फिर वही दिखने लगा मेरे को। राइट राइट मैंने राइट। कहा अब तो ये करना है। मेरी प्रोफाइल तो कैसे ये मिली थी तुम लोगों को? मेरी प्रोफाइल कैसे मिली थी तुम लोगों को? वो सिंपल है। मैं ऐसा था कि Randomly, I guess. जैसे गोल्डन जैकेट्स वगैरह सर्च किए, देन आपकी प्रोफाइल सामने आ गई। आप सर्टिफिकेशन पे सर्टिफिकेशन मचाए जा रहे थे, आप सामने दिख गए। राइट। तो है यार, मैं कई बार वीकेंड पे बोर होता तो मैं सर्टिफिकेशन क्या करूं भाई, टाइम पास के लिए थोड़ा दिमाग चला। और और वैभव भैया की प्रोफाइल मुझे एक उन्होंने पोस्ट डाली थी ऑन द व्हाइट बोर्ड। उन्होंने व्हाइट बोर्ड पे अपनी सर्टिफिकेशन लिखे थे, तब मैंने दिमाग में बना लिया था कि मैं भी अब कभी ना कभी ये व्हाइट बोर्ड पे लिख के डालूंगा। नहीं, सो वैभव मैंने भाई एक का पोस्ट की थी। भी है। वैभव भाई का मेरे पे एक दिन मैसेज आया था कि अंकित भाई मैं तुम्हारा लिंक्डइन कैप्शन चुनाऊंगा। मैं कौन सा? कह रहे दिस जैकेट इज नॉट गोल्ड, इट्स मेड ऑफ ग्रेट एंड एवरीथिंग। अरे वो बताते हैं। मैंने कहा भाई यू आल्सो गॉट द गोल्डन जैकेट? कह रहे यस, तभी तो पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अरे भाई कॉन्ग्रेट्स। इनका मैंने एक आइडिया वो चुराया था व्हाइट बोर्ड वाला। फिर मैं अपने ऑफिस में गया, अपने मीटिंग रूम में, उसके अंदर मैंने 2 घंटे बुक करके स्पेशली वो यार कलाकारी करी थी बात। वो मेरे ऑफिस में अभी तक लगा हुआ है। मैं लिंक्डइन ओह। पर नहीं, मैं प्रीतीश को देखता था। मैंने इसे गाइड करा सर्टिफिकेशन, इसके पोस्ट पे लाइक ज्यादा आ रहे। फिर मैंने क्या करा, इसके पोस्ट देखे क्या देखा, ये जो फोटो डालता था ना, हम लोग ने कोलैब कर लिया था। भाई तो पहले फोटो डाल, वो फोटो मैं निकालूंगा, मैं पोस्ट कर दूंगा। मतलब अच्छा। जैसे मैंने मशीन लर्निंग स्पेशलिटी बहुत पहले निकाली है, इसने रिसेंटली निकाला। इसने मशीन लर्निंग स्पेशलिटी की कुछ बैजेस की फोटो बनाई, मैंने वो पोस्ट करके फिर से डाल दी, उस पर लाइक आ रहे हैं। वो आई हैव मैंने स्मार्टली ना कैनवा वगैरह यूज करके उनकी या जो हमारे भाई पास मुझे क्या डेली के मतलब, बैच आते मैंने तो स्क्रीनशॉट लिया, पोस्ट करा मुझे। थे। अरे रेडी टू मेड सर्विस है मेरी तरफ से। सही है भाई। तो चलो यहाँ बताओ पे भाई। वीडियो खत्म करते हैं। हाँ So anyone watching this video, please comment your whatever you want, right? Whatever you want from us, जो भी आपको चाहिए, जैसी वीडियो आपको चाहिए, जिस टॉपिक से रिगार्डिंग चाहिए, हम वीडियो बनाएंगे। And thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe. And thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वैभव बाय बाय एंड एवरीवन। प्रीतिश। बाय। Bye bye. थैंक यू।